اس سیریل میں جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی المعروف ابو اسحاق کی پرنشیب و فراز زندگی اور ان کے شجاعانہ قیام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حضرت مختار ایک بابصیرت سیاستداں اور جنگی رموز سے آگاہ سردار اور عاشق اہل بیت اطہار علیہم السلام تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفے کی جانب سفر کے دوران سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل سے تعاون اور انہیں پناہ دینے کے جرم میں حاکم کوفہ ابن زیاد کی جانب سے اپنے گھر میں قید ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ دے سکے۔ بعد میں جناب مختار آزاد ہوئے تو انہوں نے عاشقان اہل بیت کو جمع کر کے یزیدی حکومت کے خلاف قیام کیا اور خون حسین کا انتقام لینے کے لیے معرکہ آرائی شروع کر دی۔ حضرت مختار قاتلان امام حسین علیہ السلام سے ایک ایک کر کے انتقام لیتے ہیں اور کوفے میں اسلامی حکومت تشکیل دیتے ہیں۔ اس سیریل میں ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے حضرت مختار کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ سیریل نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کے آخری ایام سے شروع ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کے آغاز تک پہنچتا ہے۔ سیریل میں قیام امام حسین کے اسباب و علل کا جائزہ لیا گیا ہے، یعنی معاویہ سے لے کر مروان تک کی حکومت کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ سیریل در حقیقت ایک تاریخی پروگرام ہے جس کے پروڈیوسر محمود فلاح اور ہدایت کار میر داود باقری ہیں۔ مختار نامے کے عنوان سے بنائے جانے والے اس سیریل میں بڑی محنت کی گئی ہے، کیونکہ یہ سیریل تاریخ کے ایک حساس واقعے کو پیش کر رہا ہے، اس لیے بہت اہم ہے۔ اس سیریل میں 220 اداکاروں نے مختلف مقامات پر کیمرے کے سامنے اداکاری کی ہے اور تقریباً 300 کی تعداد میں مقامی لوگ بھی اداکاروں کے ساتھ کیمرے کے سامنے آئے ہیں۔ یہ سیریل فارسی زبان میں بنایا گیا ہے اور اب باب العلم ڈیجیٹل میڈیا فروغ ایمان ٹرسٹ کے تعاون سے اسے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ پہلے مجھے مار دو، پھر میدان میں اترو۔ مختار نے ناریہ کی محبت کی قیمت چکا دی۔ جاؤ جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیا ہوا ناریہ؟ تم غلط کہہ رہی تھی، جھوٹ۔ سنا تم نے؟ اس نے محبت کی قیمت چکا دی ہے۔ اوہ، ناریہ کی قبر پہ بھی لعنت ہو۔ کاش میں پیغمبر کے سامنے روسیہ نہ ہوتی۔ ناریہ، کیوں قبر کے مردے اکھاڑ رہی ہو؟ میں مردے نہیں اکھاڑ رہی ہوں جاریہ، میرا دل خون خون ہوا ہے۔ میں سمرہ ابن جندب کی بیٹی ہوتی تو اپنی آنکھوں کی تیزی سے مختار کی زبان کاٹ دیتی۔ ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں ہو سکتا جاریہ، آپ کے چچا نے کام تمام کر دیا ہے، چاہتا ہے کہ وہ میدان میں اتر آئے۔ بے شک چلا جائے۔ میں کیوں اس کے کام میں مداخلت کروں؟ بالکل بھی نہیں۔ نہیں،
ویسے مختار کو جنگی لباس میں دیکھ کر تمہیں برا نہیں لگے گا؟ بالکل بھی نہیں، مختار جنگی لباس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ جب وہ اپنی داڑھی چھوٹی کرواتا ہے تو اس کا چہرہ غرور سے بھر جاتا ہے۔ ناریا، تم کیوں حسد نہیں کرتی ہو؟ مختار کا جنگی لباس تمہارا رقیب ہے۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ ایسی فضا قائم ہوگی جو تمہارے گھر کو اجاڑ دے گی؟ کیا واقعی؟ مختار اگر میدان میں اتر گئے تو کسی بھی طرح دشمنان حسن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی روبدار شخصیت کو دیکھ کر عرب کی لڑکیاں مر جاتی ہیں۔ غلط کرتی ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ ہمارے ایران میں ایک پہلوان مشہور ہے رستم کے نام سے۔ رستم پہلوان جو ہر کسی کو زیر کرتا ہے۔ مطلب؟ رستم کی طرح لگ رہے میدان کے بہادر مرد اور مدائن کے دلیر فاتح۔ میں نے ہمیشہ اپنے خیالی رستم کو تیری طرح پایا ہے۔ کیان، میں مختار ہوں، صرف مختار ثقفی۔ اگر تمہارا رستم پہلوان بھی آ جائے تو اس بے وفا اور بے حیا قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حالات بہت سخت ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے وہ کسی کی تلوار کو بھی حرکت میں لا سکتا ہے۔ کیان، اس مرتبہ معاویہ نے اپنی بیٹی کو سونے کے جہیز کے ساتھ نیزے پر بلند کیا ہے۔ صرف خدا ہی امام مجتبیٰ کو اس مکر و فریب سے بچا سکتا ہے۔ میدان جناب مختار کمر بستہ ہو کر میدان میں تشریف لا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے جھگڑے کو ختم کرنے والے صاحب گفتار و کردار۔ ان کی تلواریں اور سپر دیکھو، ان کی زرہ داؤدی زرہ، کیا شان ہے۔ شام کے لشکر کے بارے میں جو کچھ بھی تم لوگوں نے سنا ہے وہ کم ہے۔ کیا کمال کے جنگجو ہے۔ آج تک روئے زمین پر میں نے ایسے جنگجو نہیں دیکھے۔ خدایا توبہ، ان کی گردنیں جیسے گائے کی گردن، ان کی رانیں یعنی ہرن کی کمر، بازو بند گھوڑے کے لگام کی طرح، ان کی آنکھیں ایک دم جنوں کی آنکھیں جیسے۔ جب ان جنوں کو میں نے دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تو وہ سمجھنے لگے میں عراقی ہوں۔ خدا تم لوگوں کو ایسا دن نہ دکھائے۔ مجھے پہرو سے باندھ کر اس طرح لٹکایا کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ تم کو کیسے پتا چلا کہ تم عراقی ہو؟ کیسے پتا چلا؟ میرے لہجے سے۔ ہم عراقیوں کا عین اور غین شامیوں کے عین اور غین سے فرق کرتا ہے۔ خدا تم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ خدا کسی مسلمان کو ایسا دن نہ دکھائے۔ ماں بہنوں میں سے کوئی حاملہ تو نہیں؟ شام کے لشکر سے ڈرے ہوئے ہو اور سب کو ڈرانا چاہتے ہو۔ حاملہ عورت سے کیا لینا دینا ہے؟ میں کسی مسلمان بچے کا قاتل بننا نہیں چاہتا۔ حاملہ عورتیں سن لے کہ میں نے شامیوں کے کوزوں میں کیا دیکھا، سن کر خوف سے بچے سخت ہو جائیں گے۔ ویسے بھی خوف سے تم نے ہمیں نڈھال کر دیا ہے۔ بتاؤ کوزوں میں کیا دیکھا؟ بچھو، بہت سارے بچھو،
कई हजार ऊंटों पर कोसे बार किए हुए हैं जो सब बिच्छुओं से भरे हुए हैं। चाहते हैं कि उन बिच्छुओं को मदाइन के हर घर में फेंक दे। मैंने कहा था डर जाएंगी औरतें। खुदाया तौबा, जो खतरा मुसलमानों को शाम वालों की तरफ से लाहिक था उससे आगाह कर दिया। ये लानती जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, हमें डराना चाहता है। खुदाया हम सबको इस शामी दज्जाल के शर से महफूज फरमा। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे बिच्छुओं को कोजे में डाल दें? एक नहीं, कई कूजों को बिच्छुओं से भर दिया है। ये लोगों को उकसा रहा है। जाओ कियान, इसका मुंह बंद कर दो। जी जनाब अमीर, चलो आ जाओ मेरे साथ। इतने सारे बिच्छू कहाँ से लाएंगे, कैसे? बहुत आसान है, बच्चों के खेल की तरह है। शाम की फौज लकड़ी के सिरे पर एक टिड्डी को बांध देती है और उस लकड़ी को बिच्छू के बिल के नजदीक कर देती है। बिच्छू उस टिड्डी को खाने के लिए बाहर आता है और झपट पड़ता है। बिच्छू के शिकार करने वाले नामुराद और बेगैरत शामियों के गीत गाने वाले, क्या वो मेरी तरह नहीं थे? क्यों नहीं? आपकी हैबत भी उनसे कम नहीं है, लेकिन कद कामत के एतबार से आप उनके इतिहाई भी नहीं हो। अगर मैं इश्तिबाह न करूं तो आपको कहीं देखा हुआ है। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बेहुदा बातें करके लोगों को खौफजदा करते हो? तुमने इस शहर के साथ वफादारी की नियामत को किस चीज के मुकाबले में बेचा है? खाइन! तुम्हारा हाथ टूट जाए जालिम, सुधर जाओ। मैं जालिम नहीं, तुम खाइन हो। तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा। ले जाओ, इसके हाथ पैर बांधो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ करो। बचाओ बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा क्या गुनाह है? मैंने एक लुकमे के लिए खुद को बेचा है या तुमने? लश्कर इराक का तस्लीम होना झूठ है या हसन इब्ने अली का जख्मी होना? मैंने इसलिए तुमको गिरफ्तार किया है ताकि तुम्हें अपनी असलियत का पता चल जाए। ले जाओ इसे। लोगों, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ लोगों, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं लोगों। अय्युहन्नास, शामी लश्कर के बारे में उनके मुखबिर की जबान से सुन लिया। अब मुख्तार सकफी का खिताब सुन ले, जो आज से मदाइन के अमीर कहलाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि माविया इराकियों के दीन और ईमान को खरीदने के लिए ऊंटों की पुश्त पर सोना चांदी लेकर आएगा। लेकिन बिच्छुओं से भरे हुए कूजे। ये वही नापाक और मरदूद साजिश है जिसकी बिना पर सिफीन के मैदान में कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर रहे थे। हकीकत यह है कि इराक में बसने वाले अरब मैदान जंग में हमेशा शामी लश्कर के मुखालिफ रहे हैं और हैं। शाम वाले अगर बहादुर होते तो वो कभी भी बिच्छुओं का सहारा ना लेते। उनकी सारी उम्मीदें तुम लोगों की जहालत से वाबस्ता हैं। जैसा कि इससे पहले लश्कर इराक के सरमायादार मैदान जंग में उतरने से पहले माविया की दौलत से दब कर रह गए। लोगों, इमाम मुस्तफा जख्मी है। मैदान जंग में नहीं, ना शाम वालों की तरफ से, बल्कि रात के अंधेरे में किसी खारजी के खंजर से जख्मी हुए हैं। आज तुम्हारा शहर मदाइन मेजबान
फर्जंदे पैगंबर है। खुदा का शुक्र है कि अब उनकी सेहत ठीक हो रही है, बहुत जल्द सेहतियाब होंगे और माफिया के खिलाफ दंदान शिकन खिताब फरमाएंगे। लेकिन मैं मुख्तार सक़फ़ी आज के बाद इस शहर मदाइन में हर मशकूक सदा को सफाए हस्ती से मिटा डालूंगा। इस शहर को, शहर मदाइन को, तुम्हारे शहर को खुदा की मदद से शाम वालों की नापाक साजिशों से पाक कर दूंगा। जनाब, मेरा दरवाजा वो है? जी हाँ, उठा ले, आपका दरवाजा है। ये जुल्म में कत्ल कर दिया गया। ए मदाइन के लोगों, तुम लोगों का कौन सा गुनाह है जो तुम्हें जंग पर आमादा कर रहा है? तुम आज ऐसे शख्स के मेजबान बने हुए हो जिसे इस चीज की परवाह तक नहीं कि तुम्हारा खून बहाया जाए या मालो दौलत लूट लिया जाए या नामूस की तौहीन हो। ए मदाइन के लोगों, ऐसा ना हो कि शाम वाले तुम पर हमला करके तुम्हारे शहर को आग लगा दें और तुम लोगों को तुम्हारे घरों में जिंदा जला दें। हसन इब्ने अली तुम्हारे शहर में क्यों आए हैं जबकि वो जानते हैं कि माविया ने उनके सर की कीमत तय की है? मैं ऐसे मुजाहिदों के पास से आया हूं जो आज अपने भाई जर्रा इब्ने सन्नान के सोग में बैठे हुए हैं, जिसने सिर्फ और सिर्फ कुर्बत की नियत से अबू तराब के बेटे को जख्मी किया। वो खुद शहादत के दर्जे पर फाइज हुए। ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में ये कहाँ है कि हुकूमत ईरान और रोम की तरह एक हो जाए? हाँ? मुआविया जो खुद कबूतरबाज और बंदर का शौकीन है, अबू सुफियान का बेटा, हम पर हुकूमत करना चाहता है और हसन इब्ने अली रसूल खुदा की रिश्तेदारी से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। लोगों को अच्छा बेवकूफ बना रहे हो हजरत। खाली मैदान में रजस खानी के लिए ताकत का होना जरूरी नहीं है। लानत हो तुम खारिजियों पर जो अरब वालों के लिए बाइस जिल्लत और रिसवाई हो। तुम लोग आज माविया को काफिर समझते हो। क्या हुआ था जब सिफ़ीन में उसके मुसलमान होने की गवाही दे रहे और कुरान को नेज़ों पर बुलंद करने वालों के आगे सजदा कर रहे थे? सुन लिया तुम लोगों ने? हम पर तुहमत लगाता है कि हम दीन से खारिज हुए, जबकि शरीयत अहमदी के हम वफादार हैं। हमारी कल की बात और आज की बात एक है। ना मुआविया, ना अली और ना उनके बेटे। जब तक ये लोग हैं, इनके खिलाफ जंग नहीं रुक सकती। मुसलमानों के आज़ा और जवारे खाक पर हैं और उनके सजदे अपने मुकाम पर। खुदा की कसम, उमवी और अलवी के सजदों के बावजूद कोई फजीलत उन्हें हासिल नहीं। ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। लोगों, अबू इसहाक, लो तेरी मौत आ गई। अब तुम मुख्तार की मौजूदगी में रजस खानी करो। आप तमाशा देखो इस झगड़े का। मैंने सुना है कि मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी। अरब लश्कर के सिपह सालार बन गए। मैंने तो सुना है कि मुख्तार मदाइन के अमीर बन गए हैं। अमीर तो पहले से थे। अमीर नहीं थे बंदे खुदा, अमीर तो मुख्तार के चचा हैं।
ताज्जुब की बात है कि चमगादड़ दिन की रोशनी में मैदान में उतर आए हैं। मैंने सुना है कि चमगादड़ अंधेरे में रहकर मक्खियों का शिकार करते हैं। तुम तो लाताल्लुक थे और जंग करने वालों को बुरा भला कहते अबू इसहाक। इसमें शक नहीं, तुमको भी उकसाया गया है। तुमने अपने दीन को किस चीज के बदले बेचा मुख्तार? इराक की बादशाही के बदले। मुनासिब है? तुम जानते हो कि मैं क्यों जंग से नफरत करता था, और अगर नहीं जानते हो तो जान लो। जो कमर बस्ता होकर तलवार उठाए और लोगों के दरमियान जाकर अपनी तलवार घुमाए और अपने बातिल अफकार को फैलाने की कोशिश करे। हवारी मेरी नजर में काफिर हरबी हैं और उनका खून बहाना जायज है, चाहे वो लड़े या ना लड़े। इस बार, सिर्फ इस बार, वल काज़मीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास के तहत मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। दफा हो जाओ यहां से और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर एक बार भी फिर नजर आ गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारे लिए सोगवार बना दूंगा। जाओ और अपने कबीज दोस्तों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्ख्वानी करती है? ए इराक के मुस्तकबिल के बादशाह, मैं अब तक अपनी तलवार से कुत्ते को मारना भी मुनासिब नहीं समझता। क्या शैतान के इस लश्कर को सांस तक लेने का मौका मत दो। इनको रिहा करना इस उम्मत के साथ जफाकारी है। इन सबको कोशा के जिंदान में ले जाओ। जी जनाब अमीर। लेकिन तुम लोग अच्छी तरह सुन लो, आज के बाद इस शहर में किसी ने तलवार निकाली या हाथ में डंडे उठाने की कोशिश की और फसाद फैलाया तो वो मेरा दुश्मन होगा, मुजरिम कहलाएगा, चाहे ईरानी हो या अरबी, अमवी हो या अलवी। आज के बाद मदाइन के अमन की जिम्मेदारी मुख्तार पर है, समझे? क्या हुआ मेरी जान? क्यों डर रही है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, क्या तुमने नहीं सुना? क्यों नहीं, मदाइन में आग लगी थी। मुख्तार पानी बनकर इस शहर में कितना बड़ा काम किया है। ये जुर्रत किसी और में कहाँ होगी। तुम उनको नहीं मनवा सकी ना? नहीं कर सकी हन्नाना, मौका नहीं दिया। नारिया की मोहब्बत भी उनको मनवा न सकी, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम क्यों परेशान हो मेरी जान? मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उमर साद के हाथ बंधे हुए? उमर साद इराक का बादशाह बनना चाहता है, खुद मुख्तार के लिए रुकावट बन जाएगा। क्या वो ऐसा कर सकेगा? अगर तुम चाहो तो कर सकेगा। तो फिर क्या ख्वाब देखा है? अच्छा है मेरी जान, मुख्तार और उमर साद बचपन से एक दूसरे के रकीब हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आ जाओ, जानती हो उमर साद ने क्या सोचा है? हैरान रह जाओगी। इस मजूसी रंगसाज को मार।
کیا جانو گے حق کیا ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ معاویہ کے ساتھ یا علی کے ساتھ؟ اے عرب کے قوم پرست، تم نے حق کو معاویہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ دولت والے کے ساتھ حق ہے یا خدا والے کے ساتھ؟ مارا تم نے؟ خدا کی پناہ، گدھے کا سر ہے یا انسان کا؟ تو گائے کا سر یہاں کیا کر رہا ہے؟ رسوائی مسلط ہے، بنا تیرا مقدر، بنا تیرا مقدر، ناراض ہے حرکت سے تیری آج پیمبر، آج پیمبر، اے خر کتنا ہے نرم اور ملائم تیرا بستر، ملائم تیرا بستر، اوقات فراموش ہو، لعنت تیرے سر پر، لعنت تیرے سر پر۔ گائے کے گوبر کی بدبو نے تیری عقل زائل کیا ہے مجوس۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ فرزند علی کے بیت المال سے تمہیں گائے کا سر کھانے کو ملے گا؟ ہمیں دھوکہ دیتے ہو اور ہمارے خلاف سازش کرتے ہو۔ ہاں؟ آگے آؤ، میں تمہارے دماغ کو کتے کی غذا بنا دوں گا۔ آگے آؤ۔ معاویہ نے تمہیں اسیر کیا ہے یا تیرے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں؟ کس بیماری کی وجہ سے کہتے ہو کہ میرے سر سے دماغ نکالو گے؟ فتنہ و فساد کے باپ، کس دلیل کی بنا پر کہہ رہے ہو کہ میں سازش کر رہا ہوں؟ مار ڈالوں گا تمہیں گدھے۔ تمہیں نہیں معلوم شام کے لشکر نے شہر کے دروازے پر خیمے نصب کیے؟ معاویہ اس شہر مدائن کو جو اس وقت فرزند علی کی میزبانی میں مصروف ہے ان فتنوں سے بچانا چاہے۔ ٹٹی خور، ہمارا دل مدائن والوں کے لیے نہیں جل رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرمی عرب معاویہ کے دسترخوان کے پلے بڑے ہوئے ہیں۔ تم ڈر رہے ہو کہ معاویہ تمہارے اموال کو لوٹ لے گا۔ اے احمق، معاویہ اس قدر سخی ہے کہ اگر گدھے کو بھی ان کی چوکھٹ پر باندھ دیا جائے تو وہ بھی اشرفی گرائے گا۔ تم فرزند علی کی اتنی حمایت کرتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو مجوس؟ فرزند علی کی عدالت دیکھو، بس عرب و عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے فرزند علی پر۔ خدا کی قسم، اسی دلیل کے تحت ہمارا خون جوش میں آتا ہے کہ فرزند علی کے خون کے پیاسے رہیں گے۔ لعنتی واصل جہنم کروں تجھے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ تم لوگوں کی زبانیں کٹ گئیں؟ میں تم میں سے ہر ایک کی زبان کاٹ دوں گا کہ زندگی بھر بولنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ تم ہمیں قید کرنے آئے ہو تو کر لو، ہمارے قبیلے سے تمہیں کیا لینا؟ تم قید ہونے کے قابل نہیں ہو نادان، تم سولی پر چڑھنے کے قابل ہو۔ تمہاری شرارت تمہاری آنکھوں میں نمایاں نظر آ رہی ہے۔ جناب عالی، اس کا تعلق حضرمی عرب سے ہے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ جناب ایران دیلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ عرب حضرمی اور عجم دہلمی کا جھگڑا، یعنی جنگ، اموی اور علیوی کی جنگ۔ لیکن یہاں کیوں مدائن میں
चूरन साजी के बाजार में। शहर के अंदर झगड़ना यानी आशोब, जंग, अमनियत और कानून के खिलाफ जंग, गवर्नर के खिलाफ जंग। आज शहर का गवर्नर मैं हूं। जंग करने को मर्द चाहिए। कयान। जी जनाब अमीर। इनमें से हर एक की तफ्तीश करोगे। जिसने भी वार किया या चोट खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, नहीं पूछोगे कि इस झगड़े की बुनियाद और वजह क्या है? जांच पड़ताल काजी करेगा, गवर्नर नहीं। देखा गंजे, ये है अदालत जिसके लिए तुम ना उछल रहे थे। ताज्जुब है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब बहादुर मैदान में आया है ताकि शेखों की तस्लील न हो जाए। क्या आप ये तवक्को रखते थे कि इस दीन फरोश शख्स के आगे मैं खामोश रहूं? ताज्जुब है मुख्तार, मैं उसके आगे अपनी गर्दन झुकाता ताकि वो तलवार चलाए। जो शख्स काबिल हो वो अदालत के मुहकमे से नहीं डरता, और वो शिया जो फितना फसाद के बाप के मुंह लगकर दुश्मनों के लिए तमाशा बने, बेहतर है जिंदान में रहकर मर जाए। खालुल मोमिनीन मुआवियत इब्न अबी सुफियान इस जंग में जीत चुके हैं जो मीरा से मोहम्मद पर लड़ी गई थी। तुम और तुम्हारे चचा रुकावट नहीं बन सकते। तुम समझदार हो मुख्तार, फिर हुकूमत इराक का सौदा फर्जंदयारी से क्यों नहीं करते हो? इनको अभी तक जिंदान में क्यों लेकर नहीं गए? उनको दिखाने के लिए। क्यों? क्या होगा? इनकी गिरफ्तारी उन शरपसंद लोगों के लिए इबरत है जो अभी तक आजाद हैं। लोगों की इज्जत से खेलते हो। इनको जिंदान ले जाओ। जो हुक्म जनाब अमीर। माजरत चाहता हूं बुरादरान, मैं अपने भतीजे की मदद से कुछ ही दिनों में इस मसले को हल कर दूंगा। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम या मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। जी तशरीफ रखें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मुख्तार सकफी के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी ज़ियारत करके खुशी हुई। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। खुदा हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जैसे तुम अंदर दाखिल हुए मुझे लगा कि मेरे भाई अबू उबैद आ गए हैं। मालूम है इस लिबास से तुम किस कदर अपने बाप से मिलते हो। मरहबा जाने अजीज, मेरा सर बुलंद किया तुमने। तुम्हारी सारी खबरें मुझ तक पहुंचती रही। बेहतरीन ताकत का मुजाहरा किया। सुना है सारे मुनाफिकीन और मुफ्सदीन के मुंह बंद हो गए हैं। खुदा का शुक्र है कि अमन की फिजा कायम हुई। पूरे शहर में सिपाही अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मरहबा मेरे बेटे। इससे पहले हमारे पास जो कुछ भी था वो इमाम के हुक्म से भेजा गया था। इस वक्त हुकूमत का खजाना मेरे हाथों की तरह है, एकदम खाली। बहरहाल
मदाइन के मुखय्यर और हजरात की जानिब से नाउम्मीद नहीं हूं। आप लोग साबात चले जाएं। मैं कोशिश करता हूं कल सबसे पहले जो कुछ भी होगा वो आप लोगों की खिदमत में पहुंचा दूंगा। खुदावंद आलम आपकी तौफीक में मजीद इजाफा फरमाए। इमाम के पास अगर आप जैसे असहाब होते ऐसी परेशानी लाहक ना होती। यह सब मशीयत इलाही का तकाजा है बरादर। शायद इस मुसीबत में कोई ऐसी रहमत हो जिसका इल्म में नहीं है। आज इमाम मुस्तफा का यह वाक़या आपके जद्द रसूल खुदा के ओहद के वाक़े की तरह है। ओहद में शिकस्त की दलील मुसलमानों की बेदारी थी। जी जनाब, बेशक। अब हमें रुखसत की इजाजत इनायत फरमाए। खुदा की पनाह महफूज। जनाब मुख्तार, आप इराक के बाइज्जत और बाशरफ खानदान के फर्जंद हैं, बहादुर व गैरतमंद। फर्जंद रसूल के पास आपकी जगह खाली थी। हमें इफ्तिखार हासिल है कि इमाम के हम रकाब होकर तलवार उठाएं। जो खुदा चाहेगा वही होगा सरदार। हक की पनाह में। खुदा हाफिज। खुदा की पनाह में महफूज रहे। सुना बेटे तुमने, तुम बहादुर खानदान के फर्जंद हो। लोगों के जहनों में तुम्हारा कितना बड़ा मुकाम है। इस मुकाम मंजिलत की हिफाजत बहुत सख्त। मेरी हिदायत ये है कि जितनी जल्द हो सके साबात में इमाम के लश्कर से जा मिल। लश्कर इलाक के हौसले टूट गए हैं। मुझे यकीन है अगर तुम्हें वहां देखेंगे तो उनके हौसले बुलंद होंगे। मैं मानता हूं कि आप सियासतदान हैं चचा जान। आपने चाहा कि मैं मदाइन के अमूर और इमाम की जान की हिफाजत में आपका माविन रहूं, और जब तक इमाम का क़याम मदाइन में है मैं गवर्नरी के ओहदे से रूगर्दानी नहीं करूंगा। लेकिन उस जंग में जिसका अंजाम सिर्फ रुसवाई है दाखिल नहीं हो सकता हूं। बस पिछली कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहते हो? ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम हुकूमती उमूर को संभालने की खुदादाद सलाहियत रखते हो। एक पहर में मदाइन को मुसख्खर करने पर तुम कामयाब हुए। ये क्यों सोचते हो कि इराक की बिखरी हुई फौज को यकजा नहीं कर सकोगे? एक पहर में मदाइन को इसलिए फतेह किया कि मैं पूरा इख्तियार रखता था और सियासत से फायदा उठाया। लेकिन इमाम इस तरीके से राजी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके से मुमकिन है कि बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। जैसे वो रंगसाज बहराम है। जानता हूं वो बेगुनाह है। अगर मैं उसे कैद ना करता तो अरब और अजम की जबानें बंद नहीं होती। हाँ, ये भी एक दलील है। उम्मीद है कि इमाम का क़याम तुलानी नहीं होगा। तुम किस चीज की तरफ में हो मुख्तार? खेती बाड़ी की, रईयत के अमूर की। एक लश्कर की किफालत कोई कम मशगला नहीं है। कियान, मुख्तार के मशगलों में से एक मुहिम मशगला तुम हो। क्यों इस शेर को खेती बाड़ी और बीवी बच्चों का असीर बना दिया है? कियान, मेरे मशगलों में अहम मशगला तुम हो। मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार। क्यों चुकंदर की तरह सुर्ख हो रहे हो? आफरीन है इस शर्म और हया पर। इस इशारे से आपकी क्या मुराद है? कियान ने मुझसे जारिया का रिश्ता तलब किया है। मैंने तेरी रजायत की शर्त रखी है।
آپ ناراض ہو گئے ابو اسحاق؟ میں نے سوچا آپ میرے دوست ہیں. ہاں تو آپ نے غلط نہیں سوچا. حقیقت یہ ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی دوست میری بہن کے لالچ میں میرے ارد گرد نہ گھومنے لگے. ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کیان. جاریہ میری بہن ہے, میرے گھر میں پلی بڑی ہے. یہ درست ہے کہ میں نے اسے وقت نہیں دیا. یقین کر لو میں اس پر اختیار نہیں رکھتا ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کی خصلت سے واقف ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. آج رات ہمارے گھر آ جاؤ اور خود دیکھو. میری مرضی اسی مسئلے پر منحصر ہے, لیکن جاریہ کی مرضی سے حتمی جواب ملے گا. عرب کی عدم سے کیا نسبت ہے؟ میں شرمندہ ہوں کیان. امید ہے کہ ہماری دوستی پر شک نہیں کرو گے. آپ کے دشمن شرمندہ ہوں ابو اسحاق. آپ سے میری رفاقت ایک ایسا شہد ہے کہ کوئی بھی تلخی اس کے مٹھاس کو ضائع نہیں کر سکتی. آپ سے قربت پیدا کرنے کا یہ ایک ذریعہ تھا کہ بدقسمتی سے نصیب نہ ہو سکا. اس کی گستاخی اور بے ادبی اسے مہنگی پڑے گی. میں نے جتنا اسے کھلایا پلایا ہے, میں حق رکھتا ہوں کہ اسے ادب سکھاؤں. مرحبا مرحبا ام ثابت, اچھی مہمان نوازی کی ہے تم نے. میرا احترام گیا جہنم میں. یہ تھی مہمان نوازی. کیوں مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو مختار؟ جناب کیان, اس حوالے سے مختار نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. میں نے سوچا آپ حسب معمول اپنے دوست سے ملنے آئے ہیں. اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو جاریہ کو میں منوا لیتی, کم از کم توہین تو نہ کرتی. میں آپ سے شرمندہ ہوں. میں نے یہ جملہ بہت سے عرب والوں سے سنا ہے بانو. کوئی بات نہیں. بدتمیز, بے شرم. نہیں مختار نہیں, آپ کو میری قسم نہیں. وہ جوان اور مغرور ہے. خدا کی قسم اس کے غرور نے مجھے سمجھا دیا. خدا کے لیے صبر سے کام لے. تم دخل مت دو کیان. اس لڑکی نے میری عزت و آبرو کو برباد کر دیا ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بانو, آپ کچھ کر لیں. جاریہ میری بیٹی کی طرح ہے. میں نے اسے پالا ہے. چند تازیانوں کی تکلیف اسے زیادہ بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو ہماری جنس سے نہیں ہے. میرا مقصد آپ کی اہانت نہیں ہے. آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس مرد کے بیٹے ہو جس نے ایران پر سب سے پہلے حملہ کیا. اس مرد کا بیٹا جو بہادر ہے, ایک بہادر کا بیٹا جو ایک ایرانی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے. اگر آپ میرے باپ کے فرزند ہوتے تو آج ایک ایرانی کے لیے اتنا نہیں جھکتے. تم اتنی زبان درازی کر رہی ہو میرے سامنے, بے شرم لڑکی. میں حقیقت پر مشتمل بات کر رہی ہوں مختار. اب میں ایک عرب کی بیٹی ہوں, ابو عبید ثقفی کی بیٹی جو خود ایک مقام رکھتا تھا. آپ مجھے اب بھی ایک یتیم بچی کی شکل میں دیکھ رہے ہو کہ جس پر بھائی نے احسان کیا اور پالا پوسا. آپ نے میری کفالت اس لیے کی ہے کہ مجھ پر زبردستی کریں. اگر آپ میرے دلسوز بھائی ہوتے تو میرے لیے ایسا فیصلہ نہ کرتے. آپ نے کیسے قبول کر لیا کہ ایک ایرانی عرب کے تمام رسومات کو پیروں تلے رون کر میرا رشتہ مانگنے آئے؟ ہماری فضیلت قوم اور قبیلے پر منحصر نہیں ہے نادان. ہم مسلمان ہیں
उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो कि वो कितना खुदा का अजीज बंदा है? तुम इस बात को कहां समझ सकोगे? उसने मेरी तौहीन की है, मैंने उसका जवाब दिया है। तुम अपनी नाफहमी से बाज आने वाली नहीं हो। अच्छी तरह सुन लो जारिया, अब तक मैं ये सोच रहा था कि हलाल लुक्मा तेरे गुरूर को जरूर तोड़ देगा। आज के बाद मैं तुमसे जाहिल अरबों के लहजे में गुफ्तगू करूंगा, उन उबाश लोगों के लहजे में जिनके लिए तुम इस कदर उछलती। तुमने मेरे दस्तरखान की हड्डियां चबाई, तुम मेरी कनीज हो। अब तक यही होता रहा है, आपने मुझे हमेशा एक कनीज की नजर से देखा है। आप मेरे मालिक हो, भाई नहीं। अगर आप चाहते हो तो मुंह मांगी कीमत पर अपने ईरानी दोस्त से मेरा सौदा कर ले। कयान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। तुम इतनी देर तक कुंवारी रहो, इतनी देर तक कि तेरे सर के बाल दांतों की तरह सफेद हो जाएं। मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। पागल हुई है बेहुदा शख्स के इश्क में। मैंने इसकी हिमायत नहीं की है मुख्तार, वो बहुत गमगीन लड़की है। आज उन लड़कियों की तरह बात कर रही थी जो जिंदा दफन हो गई हैं। ये तमन्ना कर रही थी काश लड़की होकर पैदा ना होती। मुझे डर लग रहा है कहीं पागल ना हो जाए। पागल हुई है बेहुदा शख्स के इश्क में। अगर तुम इस पर रहम खाती तो इसको इतना गुस्ताख ना बनाती। तुम इतने बेइंसाफ तो न थे मुख्तार, उससे ये हक दो कि वो शौहर का इंतखाब खुद करे। करें इंतखाब, मगर साद बिन अबी वकास के बेटे को नहीं। मेरे लिए बायस जिल्लत है कि मेरी बहन का शौहर उम्र साद हो। देखा तुमने, तुम मेरे एहसासात को छेड़ रही हो। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। देखा तुमने, अरब का अजम से क्या रब्त है। मेरी जबान से तो जवाब तुमने सुन लिया था। एक अजीब एहसास हो रहा है कयान। मैं चाहता था कि तुम इस गुस्ताख लड़की का जवाब भी सुन लो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक लश्कर का मुकाबला कर सकता है और जीत जाता है, लेकिन अपने घर की बिल्ली तक उससे नहीं डरती। नहीं ज्ञान नहीं, अफसोस की बात है मुख्तार अली का शिया और इसकी बहन ऐसे शख्स की आशिक है जिसके बाप की मजम्मत रसूल खुदा ने की है। ये इश्क मेरी 7 पुश्तों को पीछे छोड़ देगा। नहीं ज्ञान नहीं, नहीं, तुम अली के मुखलिस शिया हो। यह रिश्ता तेरे शायान शान नहीं है। यह हमारे लिए बायस जिल्लत है कि उमर साद जैसा मक्कार और बदकार शख्स जारिया के रिश्ते की उम्मीद लिए बैठा है और हमारी गैरत से खेलना चाहता है। वो वक्त जरूर आएगा कि मैं इस बदकिरदार की गर्दन काट दूंगा। मरहबा, शाबाश। ये उमर बिन साद इब्ने अबी वकास के लिए फक्र की बात है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़वी का दुश्मन है। मुख्तार के एहसासात को भड़कता हुआ देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है कि इस कमीने ने तुमको यहाँ का रास्ता दिखाया। तुम मेरी इज्जत से खेलने आए हो हरामजादे।
जज्बाती मत हो मोमिन, खुदा न ख्वास्ता किसी मुश्किल में पड़ जाओ। कोशक सफेद जंग का मैदान नहीं है। मैं आज की शब मेहमान बनकर आया हूं। निहत्ते आदमी के मुकाबिल तलवार लेकर खड़ा होना जवान मर्दी नहीं है। जो नजासत इस घर की चार दीवारी को आलूदा करती है खून से पाक हो सकती है। ये घर आज तेरी मौत की जगह बनेगा। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि उम्र साद बेगुनाह था, मुख्तार ने मार दिया। मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ कि अपनी तलवार उठाओ और तैयार हो जाओ। मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में जो सुना था वो महज मुबालगा था। जेर भी जल्दी करो, मुख्तार के चचा को जल्दी बुला लो। सर आंखों पे बानो, अभी जाता हूँ। पहले मेरे आने का सबब मालूम करो, फिर मुझे मारो। तेरे आने के सबब को कब्र की लोह बना दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का रिश्ता मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। अगर मैं तुम्हें फुर्सत दूं तो जारिया तक पहुंचोगे कमीने। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू देखना नहीं चाहता। आप कुछ कर लो खुदा के लिए, मुख्तार को रोको। नहीं रोक सकती जारिया, वो बहुत गजबनाक हो गया है। होश से काम लो मुख्तार, मर्दों की तरह बैठकर बात कर लो। मैं अपने मुकाबले में मर्द नहीं देख रहा हूँ। अगर तुम मर्द होते तो आले उमैया की जर की गुलामी न करते। माविया ने तेरे बाप को जहर देकर मार दिया और तुम इंतकाम लेने के बदले उसके दर के गुलाम बन गए। जो शख्स अपने बाप के खून से वफा ना करे वो उस हैवान से भी बदतर है जो सिर्फ अपना पेट भरता है। खंजर उठाओ, खंजर उठाओ और अपना दिफा करो। याद रखो, तुमने खुद पहल किया है। मैं आज रात खैर की नियत से यहाँ आया था, मगर अफसोस शर नसीब हुआ। अच्छा वार करते हो मुख्तार, लेकिन मैं भी जंगजू बाप का बेटा हूं। आज की रात या तो मैं तुम पर गलबा हासिल करूंगा या इश्क की राह में अपनी जान दे दूंगा। नारिया, किसी का खून होने से पहले कुछ कर लो, वरना हम में से किसी एक को सियाह लिबास पहनना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ जारिया। मुख्तार को आज तक इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। तुम्हारे पैर टूट जाएं, जेर भी कहाँ चले गए? सिर्फ शहीद ही इस जंग की आग को बुझा सकता है। मैं आज साबित करूंगा कि मैं फातह ईरान का बेटा हूं। फातह ईरान का बेटा? अपना कोई कारनामा तो दिखा दो। बाप की फतुहात पर नाश करना मर्दानगी नहीं है। तुम्हारा क्या कारनामा रहा है बनी उमैया के दर के कुत्ते? तुमने क्या कर दिखाया अलवी दर का गुलाम? तुम हुनर की बात करते हो बेहुनर। मुख्तार, हाथ रोक दो मेरी जान। तुम कहां और कोशक सफेद कहां? ऐ साद के बेटे। मैं एक नेक काम के लिए आया हूं। आपके नाफरमान बच्चे ने मेरी आबरूरेजी कर डाली। कैसा नेक काम? जनाब अली, मैं जारिया का रिश्ता मांगने आया हूं। जो शख्स गधा है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। रिश्ता मांगने के भी अपने कुछ उसूल होते हैं बेशरम।
تو मालिक की इजाजत के बगैर, दरवाजा खटखटाए बगैर, वो भी ऐसी रात में जिस रात कोशक फर्जंद रसूल की मेहमानी में मसरूफ है। तुम उस हुकूमती इमारत में आए हो ताकि रिश्ता मांग सको। हाँ, तो कोई गलत नहीं किया मैंने। मालिक की इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि वो मेरे आने से खुश नहीं था। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मालूम था कि वो दरवाजा नहीं खोलता। आज की रात कोशक फर्जंद रसूल का मेजबान है, तो मैं आया हूं पैगंबर की सुन्नत को जिंदा कर सकूं। तुमने बिल्कुल गलत कदम उठाया है उमर साद, बिल्कुल गलत। तुमने खुद ये तय किया था कि कोई भी बगैर इजाजत कोशक में दाखिल हो जाए उसे कत्ल कर दो, और तुम बगैर इजाजत कोशक में दाखिल हुए हो। अब तक किस तरह जिंदा हो? मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिंदा हूं। देखें, मुलाहिजा फरमाएं, मेरा खून बहा है। बिल्कुल गलत, बल्कि हमारी निगरानी में कमजोरी आई है। शायद हमारे पहरेदार दरहम और दीनार की थैलियों से सुस्त पड़ गए होंगे। जल्दी मालूम हो जाएगा कि इस रिश्ते के पीछे तुम्हारी कौन सी नापाक साजिश पोशीदा है। इसे गिरफ्तार कर लो। आप एक आकिल और समझदार इंसान हैं जनाब अली। किस दलील के तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है। तुम चंद रोज कोशक में मेहमान हो। जनाब अली, फर्जंद अली के पास कोई सिपाही बाकी नहीं रहा जिसको मैं बहकाऊं। आप मुझे गलत समझ रहे हो। ये तुम्हारी गलत सोच है। मैं जब तक फर्जंद अली का मेजबान हूँ, शामी सयातीन पर हुकूमत करने का मुसम्मम इरादा रखता हूँ। अगर कोई दलील तुम्हारे पास है तो मैं अदालत में सुनने को तैयार हूँ। इस मक्कार को मेरे हवाले कर दें चाचा जान। मैं वादा करता हूँ इसकी जबान खोल दूंगा। एक शर्त के साथ मुख्तार, वादा करो कत्ल नहीं करोगे।